بہت شکریہ. پروگرام میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. اشر, گیت ہم نے سنا تو فلم مالک کی سب سے پہلے تو کاسٹ بتائیے. میں زیادہ سے زیادہ موقع آپ ہی کے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں کہ لوگ آپ کو زیادہ سے زیادہ سن سکیں. اس کی ہمیں کاسٹ بتائیے, سنگرز بتائیے, اور راحت فتح علی خان کے اس گیت کے ساتھ پھر جو المیہ ہوا تھا وہ بھی بتا دیجیے. کاسٹ تو بہت اچھے ایکٹرز ہیں. حسن نیازی نے بہت, آپ نے فلم دیکھی, he's done great justice to his role. عدنان شاہ ٹیپو, ساجد حسن, فرحان علی آغا, بیگم صاحبہ بھی ایکٹ کر رہی تھیں اس میں. تو I think everybody tried to put their heart and soul into that film. We tried to engage the best team تاکہ ہم اچھی کوالٹی ڈلیور کر سکیں. ساحر علی بگا نے میوزک بنایا اینڈ is an extremely talented man. اور میرا یہ خیال ہے کہ جی ہمیں ایٹ اے پوائنٹ ان ٹائم میں تو یہ سوچ رہا تھا بگا پہ ایک فلم بنانی چاہیے کیونکہ اس کی لائف بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور ظاہر ہم اپنے ہیروز خود کریٹ نہیں کریں گے تو کون کرے گا. راحت نے یہ گانا گایا. جب یہ فلم ہماری آئی اور سینماز میں چلنی شروع ہوئی اس وقت ایک عجیب سا بیک گراؤنڈ بن چکا ہوا تھا. پینما لیکس آئے ہوئے تھے, تو اب یہ جو گانا تھا نظریہ یہ آیا. اتنے میں مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی ہے, پاک سرزمین پارٹی, انہوں نے کراچی میں اپنا جلسہ کیا تو اس میں انہوں نے یہ گانا ہماری فلم کا یوز کر لیا. اب ظاہر ہے ایک طرف ایک طرف فیڈرل گورنمنٹ ناراض ہے, سندھ کی گورنمنٹ ناراض ہے, اور سندھ میں جلسہ ہوا رہا ہے, اور وہ پھر کنٹینیوسلی ایسے یوز کرتے ہیں. آج بھی ان کی پی ایس پی کا یہ ہوا ہے. کچھ دن بعد خان صاحب کا اسلام آباد میں جلسہ تھا پی ٹی آئی کا, انہوں نے بھی یہ گانا نظریہ یوز کر لیا. ان کے رائٹس نہیں ہوتے؟ پتہ نہیں جی, دیکھیے اگر لوگوں کو پسند آ ہی رہا ہے تو یوز کر رہے ہیں نا, اور ہم نے تو اسی لیے بنایا کہ لوگوں کو پسند آئے کوئی چیز. تو اگر وہ ایک بن گیا تو I didn't, میں کہا جی چلیں, یو لائک اٹ فائن, ٹھیک ہے. ابھی جب لوگوں نے یوٹیوب پہ بھی ڈالی فلم, میں نے کہا یار ٹھیک ہے, تو اپنے آپ نے دیکھنی ہے, یہ آپ کی چوائس ہے. میں کیوں آپ کو گائیڈ کروں کہ جی آپ جا کے صرف سینما میں دیکھیں کیونکہ مجھے پیسے ملتے ہیں. آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ نے سینما میں نہیں دیکھنا چاہتے, آپ یہ میسج بھی پائریٹڈ دیکھنا چاہتے ہیں, تو I leave it to you. ایک طرف تو آپ اچھے کی ترویج کر رہے ہیں اور پھر لوگ اس پہ بھی چوری کر رہے ہیں, تو آپ مائنڈ تو نہ چینج کر سکیں. تو دیکھیے میں تو I'm just the messenger, right? I can give you a message. Whether you accept that message or whether you don't accept that message, that's for you to decide, right? Not for me to decide. And maybe in all fairness, a lot of people don't have access to cinemas, you know? And so if they are watching it on YouTube, they're liking it. What? کیا رسپانس ملا؟ رسپانس تو جی بہت اچھا ہے. مطلب آپ خود ہی یوٹیوب پہ چلے جائیں یا فیس بک پہ چلے جائیں یا جہاں بھی جائیں, جس بھی شخص نے فلم دیکھی ہے, 1%, 0.5% کا میں نہیں کہہ سکتا, لیکن اب آئی ایم ڈی بی پہ ہماری ریٹنگ ہے, ظاہر ہے جو اسٹینڈرڈ 6 بنے ہوتے ہیں, آئی ایم ڈی بی پہ بھی ہے 9/10. So it's the highest rated film on IMDb, any Pakistani movie. We have got a 4.9 rating on Facebook. ظاہر لوگوں نے ڈالی ہوئی ہے جو جا کے دیکھ. جب فلم بنانے سے پہلے آپ نے سوچا ہوگا کہ بھائی ایک میرا میسج ہے جس کو آپ نے لکھا اور اس کو ترتیب دیا, پورا ایک فلم بنائی آپ نے, تو did you achieve your whatever you wanted to do? Actually, yes. I think I achieved more than what I had expected. And I'm very grateful to the government of Pakistan for making that happen, right? There was a message that I wanted to put across to the nation کہ میں پاکستان کا شہری, پاکستان کا مالک ہوں. And you know, ideas are they are the most potent force. The biggest force on the planet is the people, right? And people work by an idea, right? Now, if you're able to plant an idea, well, you can change the world, right? I wanted that idea to go across to a citizen کہ جی بھائی تو مالک ہے اس ملک کا, تو stop waiting for somebody, you know? Take ownership. Stop sitting on a fence. And by banning it,
Well, every television channel, everybody's picked it up, right? Well, they may have financially damaged us a lot, and we didn't make, money, or we are unable to make the next film or something. But hey, this film went through like anything. The message got across to the people like nothing else. बुशरा जी, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी और थ्रू आउट अभी भी मैं आपका पेशेंस लेवल देख रही हूँ. आप थोड़ा सा बताइएगा कि, और अशर जब भी बात करते हैं हमेशा आपका जिक्र करते हैं कि कोई भी स्टेप लेते हैं तो ये आपसे परमिशन ज़रूर लेते हैं. यहाँ पे जो नॉन मुस्लिम इस प्रोग्राम वॉच करते हैं, अक्सर लोग मुझसे एक सवाल किया करते होते हैं कि मुसलमान अपनी औरत को शायद इक्वल राइट नहीं देते. मैं आपके सामने बहुत बड़ी एग्जांपल हूँ. जहाँ पे मैं आज बैठी हूँ, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ अ मैन, जो मेरा हस्बैंड. ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, मेरे एसोसिएट्स, एंड द मोस्ट इज़ माई हस्बैंड. अभी जितनी भी बातचीत हुई है, बुशरा, आपके हस्बैंड हैज़ गिवन यू सो मच इम्पोर्टेंस इन हिज लाइफ कि अपनी ज़िंदगी के हर फैसले को आपके साथ मिल के डिसाइड करते हैं. फिल्म बनाने में आपका क्या सजेशन थी? फिल्म फ्लॉप होने के बाद, फाइनेंशियल लॉस फिल्म फ्लॉप नहीं हुई, फिल्म बैन होने के बाद पाकिस्तान के वडेरों ने, जागीरदारों ने, पॉलिटिशियंस ने जो रोल प्ले किया, आपको बड़ा बैकलैश उसका मिला. थोड़ा बताइए आप क्या फील करती हैं? फील मैंने बहुत बुरा इसलिए भी किया क्योंकि बिकॉज ऑफ हिम, ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट मैन. ये तो अब उनके सामने भी, मैं बाद में भी होती हूँ, मैं लोगों को ये कहती हूँ, एंड ही इज़ वेरी गुड गाय एज वेल. इन्होंने जितने प्रोजेक्ट कस्टम्स के किए, ओवरऑल जो भी किसी चीज़ में घुसते हैं बहुत दिल से घुसते हैं. तो ही वॉज लाइक सिटिंग विद मी, ही आस्क्ड मी कि हम ये मूवी करनी है. मैंने कहा या अगेन एक जो प्लॉट सोचा हुआ था उन्होंने बाकी भी लिखे हुए हैं, मूवीज़ लिखी हुई हैं, वो बहुत अच्छी स्टोरीज़ हैं, मगर ये वाली जो थी ये बहुत स्ट्रॉन्ग ओवरऑल ही है ना, एवरीथिंग इज़ लाइक. मगर ये कि उनका मुझे ये अच्छा लगता है कि ही ऑलवेज आस्क मी, फिर हम दोनों बैठते हैं, सोचते हैं. एंड आगे मैं क्वेश्चन भूल गई हूँ. क्वेश्चन था how did you feel once it was banned or like? मुझे ज़्यादा परेशानी ये थी कि he was like मैं इनको डाउन नहीं देख सकती. like he is like very passion होता है, कोई काम भी करते हैं तो he is like okay I have to do this, और इंटरव्यूज़ पे जा रहे हैं. I was thinking कि जो ये इतना कुछ अच्छा सोचते हैं कंट्री के बारे में, एक चीज़ के बारे में, तो मुझे ये डर था कि कोई इनका मोरल डाउन ना जाए. हाँ, she was concerned about my security too. एवरी टाइम मुझे वो डर था कि कोई कुछ. अच्छा, मैं आपके बारे में अभी जब देख रही थी कि आपने CSS का एग्ज़ाम दिया, वेरी मतलब माँ बाप को बड़ा क्रेडिट जाता है, बड़ा लाइक बच्चा माँ बाप का, और हमेशा टॉप ऑफ द लाइन आप रहे, सिविल सर्विसेज में आए, फिल्म भी बनाई. आज तक पाकिस्तान में बेशुमार पाकिस्तानी अंत की मोहब्बत भी आपसे करते हैं. आप एक आम पाकिस्तानी के बारे में कहते हैं कि आम पाकिस्तानी वो है जो पाकिस्तान को ओन करता है. तो आपके पास भी ओनरशिप थी, तो आपने उस ओनरशिप को छोड़ा और एक और ओनरशिप ले ली. ओनरशिप छोड़ी नहीं हो, क्या कहते हैं? ओनरशिप छोड़ी नहीं, ओनरशिप कभी पाकिस्तान की ओनरशिप. मुश्किल सवाल है, सोचने दें. देखिए, इशू ये है कि आई मूव्ड फ्रॉम पाकिस्तान टू कनाडा. कुछ पर्सनल जिम्मेदारियां भी होती हैं. एज आई सेड, मैं पहले कस्टम्स का जो प्रोजेक्ट कर रहा था, आई हेडेड इट फॉर 9 years, एंड फ्रॉम 2009 टू एग्जिट कंट्रोल लिस्ट्स, इंक्वायरियाँ, पता नहीं क्या क्या भुगतते रहे, बच्चों को मिल भी नहीं सकते थे. एंड मेरी बेटी ऑलरेडी यूनिवर्सिटी चली गई, और बेटा अब grade 12 में. So they practically grew up without me, and I came over to Canada because I need to spend. There's a personal me too, I have children too, and I wanted to spend some time with my family. I can't leave that nation or those people because I think जब ships चलते हैं ना, and मेरा हमेशा से concept है कि each nation is like a ship, right?
तो जो क्रू ऑफ द शिप होता है, ट्रेडिशनल मैरिटाइम ट्रेडिशन ये था जो कि कैप्टन जहाज के साथ डूब जाता था, कभी जहाज को छोड़ के नहीं जाता। बहुत खूब बात की। ठीक है, मेरा भी सवाल ये जी, लेकिन वो शिप की अब ऐसी सी सूरत हाल हो गई है कि जो एक्चुअली उसकी मैनेजमेंट, उसके कंट्रोल्स पे बैठे हुए थे, वो सब अब्रॉड, उनकी लाइफ बोट्स तैयार पड़ी हुई हैं, उनके पैसे ऑलरेडी मुल्क से बाहर हैं, उनकी फैमिलीज मुल्क से बाहर हैं, उनके कारोबार मुल्क से बाहर हैं, उनकी हर चीज़ मुल्क से बाहर है। उन्होंने सिर्फ एक जहाज़ पकड़ना है और निकलना है ना। एंड और काम करने वाले को उन्होंने क्रिपल किया हुआ है। जी, वहाँ पे वो क्रिपल्ड है। अब मेरे जैसे लोग, मतलब सिविल सर्विसेज मैंने क्यों छोड़ी, क्योंकि आप देखें ना, चाहे मैं पुलिस में हूँ, चाहे मैं कस्टम्स में हूँ, चाहे जिसमें भी हूँ, अगर मैं कस्टम में हूँ तो मैं बड़ी गाड़ी पकड़ूंगा तो वो छूट जाएगी, गरीब आदमी की गाड़ी पकड़ी रहेगी। उसका कोई वाकया शेयर करें। बहुत सारे हैं जी। एक वाकया वो टिपिकली ये जो अभी मैंने बात की कि मैं एक ज़माने में हम ये नॉन ड्यूटी पेड गाड़ियाँ पकड़ रहे थे, वो मेरा फिर वही प्रॉब्लम है कि जी गाड़ियाँ पकड़नी है, अच्छा जी पकड़ना शुरू कर देते हैं, तो फिर तो पीछे मैं हटता नहीं हूँ। तो फिर ज़ाहिर है जो सबसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नज़र आई, अच्छा ये लैंड क्रूज़र है इसको पकड़ो, ये मर्सिडीज़ है इसको पकड़ो, BMW है इसको पकड़ो, ये ऑडी है इसको पकड़ो, महंगी गाड़ियाँ हैं इनके पास हैं, अब वो जो भी है पीछे होगा वो डेरा अपने घर में होगा, लाख खड़ी कर दो। और उसमें वो श्रेड भी है किसी गरीब आदमी की, कोई टोयोटा 80, करोला 88 भी है, तो वो उनको भी लाके हमने 100 के हिसाब से गाड़ियाँ पकड़ पकड़ खड़ी कर दी। महीने बाद सिर्फ श्रेडें और करोलाएं और यही रह गई थी, बाकी सब बड़े बड़ों की गाड़ियाँ छूट चुकी थी। तो क्या यार, मैं इस मुल्क में कानून इन्फोर्स करने के लिए मैंने सिर्फ गरीब आदमी पे कानून इन्फोर्स करना है? पुलिस वाला भी जो सड़क पे खड़ा है लैंड क्रूजर को तो देख के सलूट मारता है और मोटरसाइकिल की टैंकी भी खटका के देखता है कि यार इसके अंदर। सो आई मीन वेयर आर वी गोइंग विद दिस? So when I sit as a bureaucrat in this country, am I actually a servant of the law or have I become servant of an influential person? और अगर मैंने किसी वडेरे का जाती मुलाजिम होना था तो फिर लानत भेजता हूँ मैं ये सिविल सर्विसेज की और इतना पढ़ने का और फलाने का कि मैं उसके माली हूँ। मगर क्या आपकी जगह पे जो और जितने सारे लोग वहाँ पर हैं, आप you weren't the only person in charge of that. There are so many people. Are they thinking like you or they are? देखें, बहुत सारे लोगों में ये फीलिंग है। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या बताऊं, इससे मुझे याद आया। जब मैंने नई नई सिविल सर्विसेज ज्वाइन की तो एक दिन I was at a party in Karachi, late night, we were sitting there and there was a gentleman sitting next to me. वो मुझे कहता है आप क्या करते हो? मैंने कहा यार मैं कस्टम्स में हूँ, सिविल कस्टम्स में हूँ। कहता है ओ आप कस्टम्स में हो? कस्टम्स बड़ा उस ज़माने में पावरफुल, और फिर कराची में तो बहुत ही पावरफुल और बड़ा पैसे का ग्लैमर और पैसा, you know, everything was associated to this. So he was very happy. ओ आप कस्टम में हो? अच्छा क्या करते हो कस्टम्स में? मैं कह यार मैं एसी हूँ। Literally I found it very interesting. कहता है अच्छा आप एसी हैं? I was disappointed. मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या मतलब? That's a directly commissioned officer, right? कहता है नहीं मैं समझा आप कोई, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कहना चाहता लेकिन दिस वर एग्जैक्टली हिज वर्ड्स, सो आई एम रिपीटिंग इट। मैं समझा कि जी आप पीओ हो गए या अप्रेजर हो गए। कहता है जी एसी तो 4 किताबें पढ़ के कोई भी बन सकता है ना। What is PO? That is the preventive officer, right? Other ranks, grade 11, 12 पे जो एंट्री आपके अंडर? जी अंडर। और जो अप्रेजर्स वो भी हमारे अंडर, जो वो जो लोग सबसे पहले कांटेक्ट करते हैं। ठीक है जी। And that is true, you know. And number of years later, I realized that man was so right. किताबें पढ़ के मेरी तरह का कोई भी इडियट अफसर बन सकता है, ठीक है जी। लेकिन उस लेवल पे डिपार्टमेंट में एंटर होने के लिए आप जब तक किसी के भांजे भतीजे बेटे डायरेक्टली नहीं हो, वापस आपने एक गीत सुनी है इसी फिल्म का, मालिक का। बात करेंगे मालिक के बारे में, मेरे साथ रहिए।